Hello students, now in this exercise, we are doing the third exercise of algebraic expressions, that is 9.3. In this exercise, we will learn the sums based on three formulas. The formulas are, these are called as the identities, based on the identities. So what are the identities? It is a plus b the whole square, a plus b the whole square. A plus b means in the place of a and in the place of b there can be any numbers. Okay, like it can be 10x plus y, or it can be 4 plus 7. Anything can come in the place of a and b. So what is a? A is nothing but the first term, okay, and b is nothing but the second term. So it can be anything in the place of a and b. So if you have like this, a plus b the whole square, you can, the formula is a square plus 2ab plus b square. ओके, a प्लस बी द होल स्क्वायर को जब एक्सपांड करते हैं तो ऐसा बनता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. ओके, इफ इट इज a माइनस b द होल स्क्वायर, ओके, सो यू विल गेट सेम ही फॉर्मूला होगा, सिर्फ यहाँ पे जो प्लस साइन है दैट विल बिकम माइनस a माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर. ओके, देन द थर्ड फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट. द थर्ड वन इज, if you have a plus b into a minus b, means first term plus second term and same first term but minus second term. सिर्फ साइन का डिफरेंस है दोनों ब्रैकेट्स में. इफ यू सी द ब्रैकेट्स आर सेम बट देयर इज ओनली अ डिफरेंस ऑफ साइन. अगर ऐसा फॉर्मेट है a प्लस बी a माइनस बी, सो दिस कैन बी रिटन एज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. दिस कैन बी रिड्यूस्ड एंड रिटन एज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. Okay, just go through these formulas once. So these are the three formulas, learn them, very important. We'll do the sums now based on this formula. Okay, let's start with the exercise. First sum, verify the identity a minus b the whole square is equals to a square minus 2ab plus b square. A is given as 9, b is given as 4. वेरीफाई करना है कि आइडेंटिटी ट्रू है. वेरीफाई मीन्स सब्सटीट्यूट द वैल्यू. a को 9 पुट करो दोनों में एंड 4 पुट करो. b is 4. Let's put the value. So in the place of a I'll put 9, b की जगह पे 4 द होल स्क्वायर माइनस a की जगह पे 9 स्क्वायर, देन यहाँ पे वापस a है सो 9, देन b 4, करेक्ट. a की जगह पे 9, b की जगह पे 4 प्लस इन द प्लेस ऑफ b आई अगेन पुट 4 स्क्वायर. वेरीफाई करना है कि दोनों ट्रू है, इसलिए दोनों जगह पे पुट किया. नाउ 9 माइनस 4 इज 5. ओके, सो 5 स्क्वायर इक्वल्स, दिस इज 9 स्क्वायर. 9 स्क्वायर मीन्स 81 माइनस 2 इंटू 9 18, 18 इंटू 4. सो ये तीनों मल्टीप्लीकेशन में है, सो दिस 2 विल गेट मल्टीप्लाइड. ये तीनों से दोनों से मल्टीप्लाई नहीं होगा, 2 9 से होगा, फिर जो आंसर आएगा वो 4 से होगा. ठीक है, इट इज़ लाइक 2 इंटू 9 इंटू 4. सो 2 इंटू 9 इज 18, 18 इंटू 4 इज 72 माइनस 72 प्लस 4 स्क्वायर इज 16. सो दिस इज 25, 5 स्क्वायर 25, 81 minus 72 is 9 plus 16, so this is also 25. I am getting both sides equal, therefore it is verified. Okay, ये verify हो गया that they are equal. Okay, question number 2. Question number 2 is also same. We have to verify this identity that x plus a into x plus b equals x square plus a plus b x plus ab.
सो इन द प्लेस ऑफ x बोला है x इज 11 प्लस 11, a इज 4 एंड b इज -7. सो पुट करते वैल्यूज x की जगह पे मैं पुट करूँगा 11, a की जगह पे 4, x की जगह पे 11, b की जगह पे -7. करेक्ट. x की जगह पे 11, a इज 4, b इज -7 इंटू x इज अगेन 11. जहाँ जहाँ पे जो वैल्यूज दिख रही है उसको पुट करो. 4 इंटू -7. ओके. 11 प्लस 4 इज 15. 11 minus 7 is 4. Okay. 11 square is 121 plus 4 minus 7 is -3 into 11 and 4 into -7 is -28. Okay. 15 into 4 is 60. 121 -3 into 11 is -33 -28. Okay. When you subtract this you will get 60. So दोनों equal है. That means verified. Okay. Question 3. Use identities to find the products. See. First question. It is 4x plus 9y into 4x plus 9y. See, 4x plus 9y, 4x plus 9y दोनों ब्रैकेट सेम है. दोनों ब्रैकेट सेम मीन्स ये दोनों भी सेम है. फॉर एग्जाम्पल अगर इफ़ यू हैव x इंटू एक्स तो क्या लिखते हैं उसको? इट बिकम्स एक्स स्क्वेयर. ओके. x इंटू एक्स बिकम्स एक्स स्क्वेयर. दो नंबर जब सेम है 5 इंटू 5 विल बिकम 5 स्क्वेयर. करेक्ट. सो इन द सेम वे 4x plus 9, 4x plus 9y, 4x plus 9y, 4x plus 9y will become 4x plus 9y the whole square. ओके. और a अब ये क्या बन गया? फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म. तो ये बन गया ये वाला फॉर्मूला a प्लस बी द होल स्क्वेयर. ओके. क्या होता है a प्लस बी द होल स्क्वेयर? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है. ओके. सो आई विल एक्सपांड दिस लाइक दिस. So in the place of a means first term is 4x, b means second term is 9y. Okay. So in the place of a I will write 4x. ये मेरा a है और ये मेरा b है. ठीक है. ये मेरा फर्स्ट टर्म है और ये सेकेंड टर्म है. मैंने बताया था a प्लस बी द होल स्क्वायर इज दिस फॉर्मूला एंड a and b can be anything. It will depend upon the question. Okay. So a square means 4x square plus 2 into a. a क्या है? फर्स्ट टर्म that is 4x into b second term that is 9y plus b square means second term का square that is 9y the whole square. Okay. So 4x square, 4 का square क्या होता है? 16. x को square करेंगे तो मिलेगा x square plus 2 4s are 8, 8 9s are 72. So this is 72xy plus 9 square is 81 y square. Okay. This is the expansion. Next, B. 3a square minus 8b square into 3a square minus 8b square. See, both brackets are same. Both are same brackets. If both are same means I can write it as 3a square minus 8b square the whole square. Okay. a minus b the whole square बन गया. See, first term minus second term the whole square means it is similar to a minus b the whole square. Okay. a मतलब first term, b means second term. What is a minus b the whole square? It is a square minus 2ab plus b square. Okay. a square means first term का square. first term क्या है? 3a square. so 3a square का square because ये first term है उसका square minus 2 into first term into second term plus b square. b square is this 8b square the whole square. ओके. सी यहाँ पे ऑलरेडी स्क्वायर दिया है उससे कोई चेंज नहीं होता. दिस फुल थिंग इज माय फर्स्ट टर्म.
और उसके ऊपर बाहर एक स्क्वायर है। सो ये मेरा सिर्फ फर्स्ट टर्म है। सो इस फर्स्ट टर्म का स्क्वायर होता है, जैसे ए का स्क्वायर हुआ है वैसे फर्स्ट टर्म जो भी हो अंदर, चाहे स्क्वायर है क्यूब है डजेंट मैटर, उसका स्क्वायर होगा। ओके, नाउ हाउ टू टेक स्क्वायर। 3 स्क्वायर इज 9, ए स्क्वायर स्क्वायर will become a4 minus 2 3s are 6, 6 8s are 48, a square b square plus 8 square is 64 and b square square is b4. Okay, C is 3x square upon 4 plus 4y square upon 7. Okay, and second bracket is also same, second bracket भी same है दोनों bracket. If both the brackets are same, that means I can write it as 3x square upon 4 plus 4y square upon 7 the whole square. दोनों ब्रैकेट सेम है तो उसको लिख दिया होल स्क्वायर। अब ये मेरा a है और ये पूरा मेरा b है, ठीक है, दिस इज a एंड दिस इज b और प्लस साइन है। सो व्हाट इज a प्लस b द होल स्क्वायर, क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ओके, सो a स्क्वायर मीन्स ये फुल फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, सो 3x स्क्वायर अपॉन 4 द होल स्क्वायर प्लस 2a मीन्स दिस टर्म 3x square upon 4 into b means this term 4y square upon 7 plus b square means this second term square, so 4y square upon 7 the whole square. Okay, now how will I solve this? 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 स्क्वायर इज 9, x स्क्वायर इज x4 एंड 4 का स्क्वायर, सी ये जो स्क्वायर है ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों के लिए है, सो 4 स्क्वायर इज 16 प्लस यहाँ पे देखो, यहाँ पे कैंसलेशन पॉसिबल है, ये तीनों मल्टीप्लिकेशन में है, सो इफ देयर इज अ कैंसलेशन पॉसिबल हियर, सी दिस 4 एंड दिस 4 विल गेट कैंसल्ड, तो बचा क्या 2 इंटू 3 6, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन डिनोमिनेटर में देयर इज 7 plus 4 square is 16, y square is y4, 7 square is 49. This will be your answer. Now, how to open this bracket? See, ये क्या दिया है 13p माइनस 15q, 13p प्लस 15q, साइन चेंज हुई है। सो देखो फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म, प्लस और माइनस है। सो इसका एक फॉर्मूला हमने देखा था दैट a माइनस बी ए प्लस बी, ये आगे पीछे हो सकता है, a प्लस बी कैन बी फर्स्ट, a माइनस बी कैन बी सेकेंड, डजेंट मैटर। अगर ये ऐसा था तो क्या हो जाता था, दिस वुड बिकम फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, सो हियर ऑल्सो दिस इज ए माइनस बी ए प्लस बी, सो ये क्या बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सीधा ये आपका ए है ये बी है, करेक्ट, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। So what is 13p square? 13 square is 169 p square minus 15 square is 225 q square.
Okay, understood? Here we have used this identity. Next, E, it is 0.5x plus 0.9y into 0.5x minus 0.9y. ओके, सो पहले प्लस है फिर माइनस है, साइन चेंज हो रही है दोनों में. a प्लस बी, a माइनस बी. तो अगर ये ऐसे ही फॉर्मूला बन गया, मैंने बोला था आगे पीछे हो तो फर्क नहीं पड़ता. सो दिस इज a प्लस बी, a माइनस बी, और क्या होता है ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ओके, मीन्स यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है 0.5x द होल स्क्वायर माइनस जो सेकेंड टर्म है 0.9y द होल स्क्वायर. समझ रहे हो? a प्लस बी, a माइनस बी बिकम्स a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. व्हाट इज 0.5x द होल स्क्वायर? 0.5 का स्क्वायर क्या होता है? 0.5 स्क्वायर इज 0.25 x स्क्वायर माइनस 0.9 का स्क्वायर होता है 0.81 y square. This will be my answer. Next, minus 3p plus 7q minus 3p plus 7q. ठीक है, सबसे पहले तो इसमें देखो थोड़ा सा अलग तरीके से लिखा है, माइनस 3p प्लस 7q. इसमें मैं क्या करता हूँ, ये माइनस वाले टर्म को बाद में लिखता हूँ, पहले 7q लिखता हूँ. सो ऐसे बन जाएगा 7q माइनस 3p. थोड़ा सही दिख रहा है, ये करेक्ट है बिकॉज फर्स्ट नेगेटिव टर्म नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव रखेंगे. यहाँ पे भी इट इज़ 7q माइनस 3p. बोथ आर सेम, बोथ द ब्रैकेट्स आर सेम, दैट मीन्स इट इज़ 7q माइनस 3p द होल स्क्वायर. Okay, if it is whole square, what is the formula for a minus b the whole square? Formula for a minus b the whole square, it is a square minus 2ab plus b square. Now solve this, solve the next step on your own. In the place of a, ये आपका a है और ये आपका b है, तो a की जगह पे 7q लिखो यहाँ पे और b की जगह पे 3p लिखो and solve this. Complete this sum, pause the video and complete this sum and explaining you this one. See here, x square y square plus 2, x square y square plus 2, so दोनों सेम है, means this is x square y square plus 2 the whole square. दोनों ब्रैकेट सेम है, so this is whole square. Whole square means first term plus second term the whole square, means this is a plus b the whole square. Okay, and what is a plus b the whole square? A square plus 2ab plus b square. ओके, ए स्क्वायर मीन्स फर्स्ट टर्म स्क्वायर. सो फर्स्ट टर्म इज, ये है हमारा फर्स्ट टर्म और इसका स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म दैट इज एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू बी, बी मीन्स सेकेंड टर्म दैट इज 2 प्लस बी स्क्वायर मीन्स सेकेंड टर्म का स्क्वायर, सो 2 स्क्वायर. ओके, अब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर द होल स्क्वायर, तो ये स्क्वायर का जब स्क्वायर करेंगे तो वो 4 बन जाएगा. तो ये बन जाएगा x4y4 प्लस 2 इंटू 2 इज 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इज 4. Okay, now in the beginning when I gave you a formulas, here add one more formula here, one formula like this, x plus a x plus b equals x square plus a plus b x plus ab. ये एक फॉर्मूला ऐड करो. ओके, क्या फॉर्मूला है ये? x प्लस ए एक्स प्लस बी, मतलब अगर फर्स्ट टर्म सेम है बट सेकेंड टर्म डिफरेंट है, ओके, तो उन सेकेंड टर्म को यू कैन टेक ए एंड बी, फर्स्ट टर्म इज सेम. सो वो जो फर्स्ट टर्म होगा दैट यहाँ पे हमने x लिया है उसको, सो एक्स स्क्वायर प्लस
जो ये दोनों टर्म्स है ए प्लस बी इंटू वापस ये फर्स्ट टर्म प्लस जो ये दो टर्म्स थे ए एंड बी जो भी यहाँ पे डिफरेंट टर्म्स है, दोज टर्म्स विल गेट मल्टीप्लाइड हियर। तो यहाँ पे टर्म्स ऐड हुए, यहाँ पे मल्टीप्लाई हुए। ठीक है, फॉर्मूला याद रखो, ये पैटर्न याद रखो, रेस्ट यू विल अंडरस्टैंड। कब यूज़ करते हैं? जब फर्स्ट टर्म सेम है बट सेकेंड टर्म डिफरेंट है। ठीक है, सो जो क्वेश्चन एच आई जे के है दे आर बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला। सो एच क्वेश्चन इज 11x + 9 11x + 15, करेक्ट। सो हियर यू सी फर्स्ट टर्म इज सेम, ठीक है, तो ये x होता है, और ये सेकेंड टर्म जो डिफरेंट है उसे एक को a लेते हैं और दूसरे को b। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर दिस? द फॉर्मूला इज x² + a + bx + ab मीन्स x²। सो x मतलब जो फर्स्ट टर्म होता है, दिस इज द फर्स्ट टर्म, तो 11x का स्क्वायर होगा प्लस a + b मतलब a + b, ये जो एक्स्ट्रा जो डिफरेंट टर्म्स होते हैं, दिस इज a दिस इज b, सो 9 + 15 ओके इंटू x। अगेन x क्या है? फर्स्ट टर्म। ओके, सी यहाँ पे आइडेंटिफाई करो, ये x है, ये a है, ये वापस x आया और ये b है। सो x क्या है? 11x, तो यहाँ पे आया 11x + ab, a इंटू बी। सो a की वैल्यू और b की वैल्यू मल्टीप्लाई होगी, दैट मीन्स 9 × 15। Okay, so this will become 121x² + 9 + 15 is 24 into 11x plus 9 into 15 is 135. So final answer will be 121x² plus into 11 240 plus 240 plus 24 264x plus 135. Okay, this is done. I is 9m² + 7 9m² - 5. See, first term same है. If first term is same, then we use the formula x + a x + b. Okay, see, even if there is a minus sign here, don't worry, वो हो जाएगा अपने आप सॉल्व। सो ये फर्स्ट टर्म सेम है, मतलब फर्स्ट टर्म x होता है, और सेकेंड और जो दो टर्म डिफरेंट है, एक को a लेते हैं दूसरे को b लेते हैं। फॉर्मूला सेज x² + a + bx + ab। सो x² मीन्स फर्स्ट टर्म स्क्वायर, सो 9m² का स्क्वायर होगा प्लस a + b मीन्स दिस नंबर प्लस दिस नंबर, सो 7 + -5, सो 7 - 5 into x is 9m² plus ab 7 into -5 7 into -5 ab, तो मतलब ये नंबर और ये नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, विथ साइन मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है, सो दिस 9² is 81, m² is m4 plus 7 - 5 is 2, 7 into -5 is -35. So final answer will be 81m4 plus 18m² minus 35.
Next, J1, I want you to do it on your own. 7a plus 13b, 7a minus 18b. So ये फर्स्ट टर्म सेम है, so ये फर्स्ट टर्म बन गया x प्लस a x माइनस b. So use the formula x square plus a plus b x plus b प्लस ए बी. यहाँ पे x के जगह पे 7a पुट करो, a के जगह पे 13b, x की जगह पे 7a, b के जगह पे माइनस 18b. ओके, सो इन द प्लेस ऑफ b क्या पुट करोगे? माइनस 18b. a की जगह पे 7a. ओके, सॉरी, a की जगह पे 13b. आई जस्ट डू इट. वेट, x is the first term means 7a square plus a plus b means 13b minus 18b into x. A into b means this number into this number, so 13b into 18b. Okay, 7a the whole square is 49a square. 13b minus 5b is minus 5b इंटू 7a. यदि यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 13 इंटू 18 इज 234 और माइनस साइन है यहाँ पे, सो देयर माइनस साइन विल कम b स्क्वायर. फाइनल आंसर इज 49a स्क्वायर माइनस 5 इंटू 7 इज माइनस 35. ab माइनस 234 b square. Okay, next is x square y square plus 17 x square y square minus 21. Okay, how to do this? k1 again same, first term same है, ठीक है. So this is x plus a x plus b. Formula is x square plus a plus b x plus ab. ये फॉर्मूला है when first term is same. So first term का स्क्वायर, ये है first term, so इसका स्क्वायर होगा x square y square का स्क्वायर plus a plus b means 17 minus 21 sorry into x, that is x square y square plus ये दोनों नंबर्स मल्टीप्लाई होंगे 17 into minus 21. So this will become x4 y4. Okay, 17 minus 21 is minus 4 x square y square minus 17 into 21. You have to multiply this. 17 into 21 you will get 357. माइनस साइन थी यहाँ पे इसलिए माइनस साइन आई, यहाँ पे भी माइनस आया. 17 माइनस 21 इज माइनस 4, इसीलिए माइनस साइन आई. Okay, next you can pause the video, copy it in as per your speed. Now question 4, find squares. Okay, find squares बोला है. We have two identities of squares, a plus b the whole square और a minus b the whole square. अगर a plus b the whole square है तो it is a square plus 2ab plus b square. And if it is a minus b the whole square, it is a square minus 2ab plus b square. Okay, so using these two identity you can solve any of these sums. Okay, so I'll do a few first and then you try on your own. Okay, so let me do the D1. A B C सिंपल है, पहले D कर लो, ठीक है. D करेंगे E, then G. I will do these sums D, E, G and H. ठीक है, पहले ये चार करो मेरे साथ and then once you complete them then do the remaining ones. Now only after we finish these 4 pause the video and do the remaining ones also. Okay, मैं difficult वाले करता हूँ आपके लिए. This is the question. So first term plus second term the whole square.
जब प्लस है तो मीन्स ए प्लस बी द होल स्क्वायर है ये, जैसे एक ए है एक बी है और होल स्क्वायर है, तो क्या बन जाता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, ए स्क्वायर मीन्स जो फर्स्ट टर्म है उसका स्क्वायर, ओके, प्लस 2 ए मीन्स फर्स्ट टर्म, बी मीन्स दिस सेकेंड टर्म, प्लस बी स्क्वायर, ये बी है ये ए है ये बी है, इसका स्क्वायर बी स्क्वायर। ओके, सो ए स्क्वायर बी स्क्वायर का स्क्वायर लेंगे तो ये बन जाएगा a4b4। यहाँ पे कुछ मल्टीप्लाई होने जैसा नहीं है, ऑल वेरिएबल्स आर डिफरेंट, सो इट विल बी लाइक दिस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर, प्लस यहाँ पे स्क्वायर का स्क्वायर ले रहे हैं तो इट विल बिकम 4। ओके, next sum, first term minus second term the whole square means this is a minus b the whole square, और क्या होता है a minus b the whole square, a square minus 2ab plus b square। okay, a square means first term का square, so 3/2m the whole square minus 2 into ab, मतलब a फर्स्ट टर्म है b सेकेंड टर्म है, सो 3/2m इंटू b इज 2/3n प्लस b स्क्वायर मीन्स जो सेकेंड टर्म है उसका स्क्वायर, सो दैट इज 2/3n द होल स्क्वायर। ओके, आई डू द सम हियर ओनली सो इट इज विजिबल। सी 3/2m द होल स्क्वायर, सो 3 का स्क्वायर 9, 2 स्क्वायर इज 4 एंड m स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9/4m स्क्वायर। करेक्ट, यहाँ पे आई कैन डू कैंसिलेशन, सी दिस 2 विल गेट कैंसल्ड, दिस 3 विल गेट कैंसल्ड, सो व्हाट विल रिमेन -2mn, सो -2mn प्लस 2/3n द होल स्क्वायर, सो 2 स्क्वायर इज 4, 3 स्क्वायर इज 9, n स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। Okay, try the f1 on your own using the same formula f1 and check your answer behind। g is 4x square plus 3y square the whole square। okay, that is a plus b the whole square, plus है ना ये a plus b the whole square। what is a plus b the whole square, a square plus 2ab plus b square। फॉर्मूला लिखना ज़रूरी है बिकॉज फॉर्मूला लिखने के बाद यू कैन सब्सटीट्यूट प्रॉपरली। सो जो फर्स्ट टर्म होता है वो a होता है और ये b होता है, तो a का स्क्वायर करना है मीन्स 4x स्क्वायर द होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b, करेक्ट, प्लस b स्क्वायर मीन्स दिस टर्म स्क्वायर, सो 3y द होल स्क्वायर। नाउ लास्ट स्टेप, 4 स्क्वायर क्या होता है 16, x स्क्वायर का स्क्वायर इज x4 प्लस 2 4 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, सो 24 y स्क्वायर x स्क्वायर, या x स्क्वायर y स्क्वायर भी लिख सकते हैं सेम, 3 स्क्वायर इज 9, y स्क्वायर स्क्वायर इज y4। Copy neatly, pause the video and copy the sum। Now
द नेक्स्ट सम, यहाँ पे भी अगेन एक फर्स्ट टर्म है प्लस सेकेंड टर्म होल स्क्वायर, सो ये बन जाएगा a, ये बन जाएगा b, a प्लस बी द होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, सो a स्क्वायर मीन्स फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस 2a b प्लस b स्क्वायर, b means 1/3x the whole square. 3x square is 9x square plus, यहाँ पे देखो you can cancel this 3x and 3x, so what will remain, only 2 will remain plus 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 3x का स्क्वायर हो जाएगा 9x स्क्वायर. ओके, सी कैंसिलेशन इज ओनली पॉसिबल व्हेन दे आर इन मल्टीप्लिकेशन. जैसे यहाँ पे एडिशन साइन है तो इसको कैंसिल नहीं कर सकते बिकॉज देर इज एडिशन साइन. कैंसिलेशन इज ओनली पॉसिबल व्हेन देर इज मल्टीप्लिकेशन साइन इन बिटवीन. ओके, तो ब्रैकेट्स मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4 इज डन. लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 5. Now we know the formula that a plus b into a minus b is a square minus b square. Okay. Now this formula can be reversed, can be used in the reversed way also. Means अगर a square minus b square दिया है तो I can write it as a plus b a minus b. समझ गए? सी इफ़ आई हैव बीन गिवन दैट एक फर्स्ट टर्म है उसका स्क्वायर है माइनस जो सेकेंड टर्म है उसका स्क्वायर है, तो क्या करना है, दोनों टर्म्स को एक बार ऐड करना है और एक बार सबट्रैक्ट करना है. ठीक है, सो दिस इज द वे विच विल बी यूजफुल इन दिस क्वेश्चन नंबर 5. सो दो चीज़ दी होगी, एक फर्स्ट स्क्वायर माइनस सेकेंड स्क्वायर, तो उसको क्या करना है, ये फॉर्मूला से ओपन करना है. सो व्हाट इज द क्वेश्चन, a square plus b square the whole bracket square minus a square minus b square the whole bracket square. तो सी यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर क्या है वो मत देखो, ब्रैकेट्स क्या है ये बेसिकली सी ये फर्स्ट ब्रैकेट का स्क्वायर है और सेकेंड ब्रैकेट का स्क्वायर है और बीच में माइनस साइन होना कंपलसरी है. अगर बीच में प्लस साइन हुआ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तो इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, देयर इज नो फॉर्मूला फॉर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. बट अगर फर्स्ट ब्रैकेट स्क्वायर माइनस सेकेंड ब्रैकेट स्क्वायर है, तो देखो फर्स्ट ब्रैकेट स्क्वायर माइनस सेकेंड ब्रैकेट स्क्वायर है, तो करना क्या है, रिमेंबर ऐड बोथ द ब्रैकेट्स सबट्रैक्ट बोथ द ब्रैकेट्स. रिमेंबर दिस स्टेटमेंट इन योर माइंड दैट फर्स्ट ब्रैकेट स्क्वायर माइनस सेकेंड ब्रैकेट स्क्वायर है, तो ऐड बोथ द ब्रैकेट्स सबट्रैक्ट बोथ द ब्रैकेट्स. ओके, सो यहाँ पे भी जो ब्रैकेट के अंदर के कंटेंट्स है एक बार वो ऐड होंगे और एक बार वो सबट्रैक्ट होंगे. सो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. देखो ब्रैकेट के अंदर के कंटेंट्स को ऐड किया और एक बार सबट्रैक्ट भी करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस दूसरा ब्रैकेट क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. अब जब भी माइनस करेंगे ना तो एक छोटा सा ब्रैकेट आना चाहिए यहाँ पे बिकॉज साइन चेंज होगी. सो सी ऐड बोथ द ब्रैकेट्स और सबट्रैक्ट बोथ द ब्रैकेट्स. ओके, सो यहाँ पे देखो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बन जाएगा 2a स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैंसिल. ओके, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओपन द ब्रैकेट माइनस ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर. ओके, सो दिस इज 2a स्क्वायर. यहाँ पे देखो ये ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर तो ये कैंसिल हो गए दोनों, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और क्या बचा, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विल बी 2b स्क्वायर. ओके, 2 into 2 is 4a square b square. Answer is 4a square b square. Okay, 4a square
बी स्क्वायर। क्या किया हमने, फर्स्ट ब्रैकेट का स्क्वायर था माइनस सेकंड ब्रैकेट का स्क्वायर था, दोनों ब्रैकेट को ऐड किया, दोनों ब्रैकेट को सब्ट्रैक्ट किया। जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तब सेकंड ब्रैकेट में एक छोटा सा और एक ब्रैकेट आएगा, बिकॉज साइन चेंज होती है। ओके, इन द सेम वे लेट्स डू द बी सम, दैट इज 3.5a प्लस 4.5b द होल स्क्वायर माइनस 3.5a माइनस 4.5b द होल स्क्वायर। सो मीन्स ये फर्स्ट ब्रैकेट का पूरा स्क्वायर है, सेकेंड ब्रैकेट फुल स्क्वायर है, सो दोनों ब्रैकेट्स के स्क्वायर है और बीच में माइनस साइन है, तो ऐड बोथ द ब्रैकेट्स, सब्ट्रैक्ट बोथ द ब्रैकेट्स। ये दोनों ब्रैकेट्स को ऐड करेंगे पहले, 3.5a प्लस 4.5b प्लस ये दूसरा ब्रैकेट, ओके फिर ये दोनों ब्रैकेट्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 3.5a प्लस 4.5b। इन ब्रैकेट के अंदर के साइंस में कुछ चेंजेस नहीं होगा, ठीक है, ये एज इट इज ऐड हुआ, एज इट इज सब्ट्रैक्ट होगा, ठीक है, माइनस सब्ट्रैक्ट सेकेंड ब्रैकेट इधर आएगा, तो सेकेंड ब्रैकेट को एक छोटे से ब्रैकेट में डालते हैं। क्यों ब्रैकेट में डाला है, बिकॉज हमेशा जब सब्ट्रैक्ट करते हैं दोनों ब्रैकेट्स को तो यहाँ पे छोटा ब्रैकेट आना चाहिए, बिकॉज ऑफ दिस माइनस साइन द साइंस विल चेंज हियर। ओके, so now 3.5a plus 3.5a will become 7a, 4.5b minus 4.5b will get cancelled, 3.5a plus 4.5b, open this bracket, minus 3.5a minus minus plus 4.5b, okay, so 3.5a minus 3.5a will get cancelled, 4.5b plus 4.5b will be 9b, so 7a into 9b, 9 7s are 63ab. Okay, now next two, the c and the d sum are same, exactly same as a and b. Okay, so I want you to do c and d for homework. Okay, so pause the video and solve it now only. Okay, do these sums, pause the video and do these sums. That's it for this video. In the next video I'll continue with question number 6.